Assalamu alaikum. This is the second part of our series today. In the third part, I'll be going over specific courses that I can teach. Now, if you look at this picture, what you should be noticing is a discoloration of the rocks right here. Okay, let me get my laser pointer going so you can see what I'm pointing at. But you see this area right here? You can see that the colors here are not the same as the colors here. So there's a patch right there. Here's another patch right there. Here's another one. Now, unless you're blind, you should be able to see that not only in Outcrop, but we can access Google Earth, which is free. And if you look at Google Earth, you can see that you can see the same pattern over here, right? You can see that this is a different color. Here's the different color. This is a Google Earth image of the same area that I just showed you on the cover slide. So let's assume you are a mining investor. Okay. And this happens to be your acreage. What most mining investors will do is they will want to invest in geophysical surveys when they're not even needed. This is not Canada. It's not Australia. Most outcrops in Pakistan where we do have mineralization are not undercover. Undercover का क्या मतलब कि या तो वहाँ उसके ऊपर बहुत सारे वोल्केनिक क्लास्टिक्स पड़े हुए हैं या उसके ऊपर रीसेंट बजरी पड़ी हुई है या उसके ऊपर घने जंगलात हैं। ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। इसका मतलब जिन एरियाज में हमें मिनरलाइजेशन मिलती है वो आपको सरफेस के ऊपर नजर आ जाते हैं जो कि यहाँ से नजर आ रहा है। अब लेट्स अस्यूम कि आप लोग माइनिंग में नए हैं और आपने बोला कि यार ये काम किस तरह से करें। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप लेट्स अस्यूम आपने यूके में किसी कंसल्टिंग फर्म को एंगेज किया और वो तो पाकिस्तानियों को उल्लू बनाने में माहिर है। तो उन्होंने बोला कि not a problem, we'll do hyperspectral imaging, we'll do remote sensing, then we're going to look at aster data, and then we're going to come up with this, and this is the resolution we're going to use, and we'll do this and that. And they come up with a package that costs several hundreds of thousands of dollars that'll last for maybe a year or two. और आप खुशी खुशी उनको पैसे दे रहे हैं। आप खुशी खुशी उनको पैसे दे रहे हैं ये समझ के कि ये आपको कोई जादू करके देंगे। लेकिन बात यह है कि भाई मैं अगर आप अंधे नहीं हैं तो फिर ये तो आपको वैसे ही गूगल अर्थ के ऊपर नजर आ रहा है जो कि मुफ्त है। तो जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उसको टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगेन दिस इज एन एग्जांपल दिस इज मैं जो आपको बातें इस प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। I've been involved in the Pakistani geological community with training and consulting since 2009. This means now it's been an exceedingly long time. I mean, almost 25 years at this point, or actually almost 15 years at this point. So these are patterns I see over and over again. As far as mining professionals in Pakistan go, they fit into three main categories. There is a fourth category, and I'll discuss that briefly. पहली कैटेगरी तो हो गई उन फ्रेश ग्रेजुएट्स की जिन्होंने फर्स्ट करें किसी यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी की जियोलॉजी में और फिर वो समझे कि बीएससी काफ़ी है और अब मुझे वर्कफोर्स में आ जाना चाहिए। और क्योंकि मेरा 25 साल का तजुर्बा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको ये गारंटी करके कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी जो जियोलॉजी में बीएससी की डिग्री की वैल्यू इतनी है जितना जैसे पुराने अखबार की होती है ना जिसको आप लेके जाते हैं। कभी समोसे या पकोड़े खरीदते हुए आपको दे देते हैं ताकि जो तेल है वो नीचे ना जाए वो सोख कर ले। तो जियोलॉजी की जो बैचलर्स की डिग्री उसकी तकरीबन उतनी ही वैल्यू है जितनी उस अखबार की आप बल्कि आप चाहें तो आप उसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। A bachelor's does not prepare you for a career in the mining industry in geology. In engineering, yeah, it's good enough, but not in geology. लेकिन let's assume कि चले आपने बैचलर्स नहीं किया आपने उससे भी ज्यादा पढ़ाई की। तो पहली बात ये है कि आपको
पता होना चाहिए कि जो आपने, एक तो वो है किताबी बातें जो आपने यूनिवर्सिटी में सीखी, और एक प्रैक्टिकल लाइफ है कि प्रैक्टिकल तरीके से कौन सी स्किल्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं, और कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी की हद तक ठीक थी लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में उनकी वैल्यू नहीं है। तो कुछ मेरे कोर्सेज ऐसे हैं जो मैंने खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किए हैं, जिसमें मैं स्पेसिफिकली उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ जो आपके माइनिंग करियर के लिए मुफीद है। So this is it's very important to understand this, and we'll talk about this in more detail. The second category is petroleum geologists that have now been assigned to work in the mining industry. मतलब ये है कि आप फर्ज करें हम पंजाब यूनिवर्सिटी गए या बैरिया यूनिवर्सिटी गए, उधर आपने क्लासेस ली साइस्मिक इंटरप्रिटेशन पे, आपने सेडिमेंटोलॉजी में क्लासेस ली, स्ट्रेटिग्राफी पे ली, फिर आपने फर्ज करें कोई डॉक्टर नदीम का कोर्स कर लिया सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी में, एंड नाउ यूर गियर्ड अप फॉर द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, और आप अच्छा खासा सुकून से काम कर रहे थे अपने दफ्तर में बैठ के, और एक दिन आपका मैनेजर आके कहता है कि आज से आप माइनिंग जियोलॉजिस्ट हैं। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ मी गोइंग टू अ साइकाइट्रिस्ट जिसने सारी जिंदगी पागलों का या दिमागी मसलों का इलाज किया हो, और मैं बोलूँ कि भाईजान आज आप दिल की सर्जरी करने जा रहे हैं अल शिफा हॉस्पिटल में। दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड। ओके, तो उसका क्या, उसमें why are they not trained? Well, first of all, oil and gas is found in sedimentary rocks, which means कि या तो आप कार्बोनेट्स पे काम किया आपने या या सिलिकोसिस पे किया, और 90% जो माइनिंग का काम होता है वो इग्नियस रॉक्स में होता है या मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है। दिस मीन्स अब आप हार्ड रॉक्स में आ गए। तो अगर आपको मैं एक डे साइड का सैंपल देता हूँ और एक एंडरसाइड का सैंपल देता हूँ और आपको उन दोनों में फर्क नहीं पता चलता, तो इसका मतलब आपको तो माइनिंग की तो अलफ बे भी नहीं आती। तो इंस्टेड के आप जंप करें कि यार मैं जाके स्टीव गार्विन का कोर्स कर लूं पोर्फरीज पे, नहीं यार, आपको स्टीव गार्विन का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको अलिफ बे सीखने की जरूरत है अभी। यू नो, देयर इज नो पॉइंट in you signing up with with a course with one of the top porphyry experts in the world if you cannot even distinguish pyrite from chalcopyrite. It doesn't work like that. Okay, so there are certain courses that I will be offering that are designed specifically for people that have transitioned from oil and gas geology into mining geology, ताकि मैं, अब जाहिर बात है, मैं आपको इग्नियस पेट्रोलॉजी तो पढ़ा नहीं सकता 10 दिन के अंदर सिर्फ, या जियो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा सकता आपको 10 दिन में, लेकिन एटलीस्ट 5 दिन में मैं आपको वो चीज़ें सिखा सकता हूँ जो आपके लिए क्रिटिकल है। तीसरी कैटेगरी माइनिंग माइनिंग प्रोफेशनल की पाकिस्तान में वो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अब दिलचस्पी आ गई है माइनिंग में, लेकिन उनका कभी माइनिंग का उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनका बैकग्राउंड नहीं है माइनिंग में। And what they don't realize is that mining is the business of failure where 99% projects will fail. तो अगर आप ये समझ के इन्वेस्ट करें कि यार मैं इन्वेस्ट करूंगा और इसमें तो बहुत सक्सेस है और बहुत और जल्दी सक्सेस मिल जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर आपको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए तो आपको चाहिए कि आप डोमिनोज या चीजियस की फ्रेंचाइज खरीद लें, या आप फर्स्ट करें कोई गैस स्टेशन खोल लें पाकिस्तान में, कोई ऐसी चीज़ जो जिसमें गारंटीड पैसे की जनरेशन है। माइनिंग इज एक्सट्रीमली रिस्की, you know, it's a high risk high reward industry. Or agar not only is it high risk high reward, when you do make money, the money does not come right away. It takes a long time for the profits to start coming in. So if you're risk averse, इसका मतलब कि अगर आप नहीं चाहते कि नहीं यार ये तो बहुत रिस्की बिजनेस है, तो फिर आपको माइनिंग में नहीं पड़ना चाहिए ना। या अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं जो अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा इस पे मुझे रिटर्न विद इन 5 years मिल जाना चाहिए, तो अगेन दिस इज नॉट द इंडस्ट्री फॉर यू। So there is a course that I offer. It's a 1 day course which is specifically designed for investors, just so you have realistic expectations as to what the workflow is and what the investment is like and what the return on that investment can be like, and different business models. तो एक चौथी कैटेगरी भी है जो मैंने डिस्कस नहीं की, और वो है पाकिस्तान में गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की। I'm not going to name the governmental organizations that are involved in mining. And it's a pretty hopeless situation. It's a hopeless situation for two reasons. Number one, uh, most of them believe कि उनको पहले से सब कुछ आता है, और अगर कोई
कोई ये समझता है कि उसको पहले से सब कुछ आता है, तो फिर उसको सिखाना बड़ा मुश्किल है। एंड नंबर टू, learning and investing in professional development is not a priority. So that's which is why I have not included that in here. But there's a very large number of mining professionals that are involved in governmental organizations in Pakistan. But like I said, they know everything already, so there's no point in talking to them. So let's start with fresh graduates. I'll give you an example. अभी कुछ दिन पहले मैं लिंक्डइन के ऊपर मैंने देखा है किसी ने एक पोस्ट डाली हुई थी पाकिस्तान से, जिसमें वो मैग्नेटिक सर्वे करें एक एरिया का। और वो पोस्ट ये थी कि मैं यहाँ पोर्फिरीज ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ तो कार्बोनेट्स आ गए, तो अब क्या मेरा मैग्नेटिक सर्वे बेकार हो गया, या मुझे क्या करना चाहिए था। And that person had a PhD associated with their name. And I'm like, how is this possible? How does this person have a PhD and not know things like that? And when I looked at their profile, I realized that their PhD was in geotechnical engineering. तो भाई, पहली बात तो ये है पहली बात तो ये है कि जस्ट बिकॉज आपने यूनिवर्सिटी में किसी वक्त में कुछ जियोलॉजी की क्लासेस ले ली, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नाउ अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। ऐसे नहीं होता। जियो टेक्निकल इंजीनियर्स का बिल्कुल अलग काम है, उनका मिनरल एक्सप्लोरेशन से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह अगर आपकी ने जियोलॉजी का काम किया है और आप उसके बाद से आप सर्वेस का काम करते हैं कि रोड्स की सर्वे करना या डैम्स वगैरह का सर्वे करना, अगेन दैट हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद मिनरल एक्सप्लोरेशन। Unfortunately, a lot of the mineral exploration surveys in Pakistan are done by people that have backgrounds like that. तो दुनिया को तो चलो आप उल्लू बना सकते हो कि यार मुझे ये काम आता है, लेकिन अपने आप को तो आप उल्लू नहीं बना सकते ना। तो यू मस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको आती हैं और क्या चीज़ें आपको नहीं आती। तो अगर इस काम में आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो ना सिर्फ फील्ड की स्किल्स इसमें चाहिए होती, इसमें ऑफिस स्किल्स भी चाहिए। क्योंकि फ़र्क माइनिंग जियोलॉजी में और ऑयल एंड गैस जियोलॉजी में सबसे बड़ा ये है कि ऑयल एंड जियोलॉजी में लेट्स अस्यूम आपने मास्टर्स किया किसी यूनिवर्सिटी से, फिर आप जाके कराची में यूईपी में बैठ गए। अब सारा दिन आप दफ्तर में जाके बैठते हैं 8 घंटे कंप्यूटर के सामने, and you almost never go into the field unless you're an operations geologist. And even when you do go into the field as an operations geologist, you're just looking at the drilling. You're not collecting samples out there. You're not doing field work out there. But mining geology is not like that. It needs to be a balance of field and office skills. And when you're in the field, the most critical need is field mapping, then core description specifically for hard rocks and those that have gone through alteration, then mineralogy, geochemistry, structural geology, software skills. These are office skills. This includes GIS, mining specific software like Leapfrog or IOGAS, Leapfrog resource modeling के लिए, IOGAS geochemical sampling के लिए। तो ये सारी स्किल्स होनी, ये क्रिटिकल है। और ख़ास तौर पे और एक और जो चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो लैंग्वेज स्किल्स है। क्योंकि अभी वक्त के साथ साथ बहुत कंपनीज पाकिस्तान आएंगी, उसमें से काफ़ी कंपनीज मिडल ईस्ट से आएंगी, वो सारी अरबी बोलते हैं। ठीक है। And if you're speaking Arabic, then you have an upper hand on those who don't. But again, these are skills that are extremely important for students to develop. Again, मेरा जो कोर्स है वो जाहिर बात है सारी चीज़ों को तो कवर नहीं कर सकता स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो मेरा 2 दिन का कोर्स है, which is Fundamentals of Magmatic Hydrothermal Systems, I'll provide you details on that in the next presentation. But that is geared towards students, so you know exactly what skills you need to develop if you're going to enter the mining workforce. अब जो सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, उन उनकी जो पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट हैं, जो अच्छा खासा अपना बैठ के काम कर रहे थे किसी ऑयल एंड गैस कंपनी में, एंड दे हैव बीन असाइन्ड टू बिकम माइनिंग जियोलॉजिस्ट्स। सबसे बड़ा जो फ़र्क है ऑयल एंड गैस में और माइनिंग में, वो ये है कि ऑयल एंड गैस में फ़र्ज़ करें आपकी एक फील्ड है जिसमें 40 वेल्स हैं। अगर 30-40 वेल्स हैं, या अगर आपने 10-15 एक्सप्लोरेशन वेल्स ड्रिल किए, तो उसमें से आप एक को कोर करते हैं। और जब वो एक कोर निकल के आता है, तो वो इतना कीमती होता है कि कंपनी के ज़्यादातर लोग तो उसको छूते भी नहीं है। वो कोर कट के किसी लैब में चला जाता है, वो पड़ा रहता है एसी वाले कमरे में। फिर बाहर से आप किसी बहुत ही एक्सपेंसिव कंसल्टेंट को बुलाते हैं, वो कंसल्टेंट आपके लिए कोर डिस्क्राइब करता है। और उस कंसल्टेंट की भी बड़ी हाई क्वालिफिकेशंस होती हैं। उसके बाद वो आपको कोर के बारे में रिकॉर्ड करते हैं। तो कोर को बहुत ही प्रेशियस चीज़ समझा जाता है ऑयल एंड गैस में।
Mining में core, you're not just taking a core in one out of every 15, 20 wells. Every well is drilled specifically for core. इसका मतलब hundreds of meters of core निकलेगा जमीन में से। और जब वो निकलेगा तो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब बात ये कि उसको उसको कौन डिस्क्राइब करेगा, उसको हर लेवल का बंदा, उसको शुरू में जो जो ट्रेनिंग जियोलॉजिस्ट हैं, जो एंट्री लेवल जूनियर जियोलॉजिस्ट हैं, वो सारे जिनको जीआईटीज कहते हैं, जियोलॉजिस्ट इन ट्रेनिंग, कोर को वो डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आपने कभी हार्ड रॉक कोर डिस्क्राइब ही नहीं किया, या अगर आपने कभी ऐसा कोर डिस्क्राइब नहीं किया जिसमें हाइड्रोथर्मल ऑल्टरेशन हुई हुई है, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो मैं अक्सर, again, this is something I see online on LinkedIn quite a bit. Okay, people discuss mining projects. We have a mining project here. Oh, we're working on this. This is a polymetallic zone here. But there's never any core photos. Yeah, there's companies that discuss that, oh, we're drilling a core Chagi area में इस जगह के ऊपर। और मैं सोच रहा हूँ कि चलो आपने कोर ड्रिल किया, अब जब उसको निकलेगा तो उसको कौन देखेगा आके? क्योंकि ये ऑयल एंड गैस वाला मोड, वो मोड तो है नहीं कि आप बाहर से किसी को 1500 $2000 पर डे के हिसाब से बुलाएंगे सिर्फ आपका कोर देखने के लिए, बिकॉज यू हैव हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ कोर एंड यूर ड्रिलिंग मल्टीपल मल्टीपल वेल्स रिकवरिंग कोर। तो उसको कौन करेगा? यू नीड टू लर्न हाउ टू डू इट। Okay, you don't have to be an expert at it, but at least you need to know the basics of being able to do this. And again, this is something that I cover in my courses. उसके अलावा we cover other geophysical, geochemical parameters जो कि बहुत ज़रूरी हैं माइनिंग जियोलॉजी में, जो ऑयल एंड गैस में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब जो तीसरा मैंने आपको ग्रुप बताया था वो इन्वेस्टर्स का है। मेरा जो इन्वेस्टर्स के साथ एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में और डिफरेंट मुल्कों में, वो ये कि वो क्योंकि उनको नहीं, उनका जियोलॉजी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनका माइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो वो ये समझते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अभी मेरा एक क्लाइंट है, वो मंगोलिया में होता है, उससे जब मैं बात करता हूँ मुझे बताता है कि हम लोगों ने, अब मैंने दो और मैग्नेटिक सर्वे कर लिए, अब मैंने ग्रेविटी सर्वे कर लिया, अब मैं ईएम सर्वे करने वाला हूँ, और ईएम सर्वे के बाद में वहाँ आईपी करूंगा। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे तुम कर क्या रहे हो? मतलब वो लुटा रहा है पैसे, वो लिटरली लुटा रहा है पैसे, बगैर सोचे कि यार मुझे किस किस्म का डिपॉजिट है, इस पे क्या चीज़ फायदेमंद होगी, इसमें क्या चीज़ नहीं फायदेमंद होगी। क्योंकि हर जियोफिजिकल सर्वे हर डिपॉजिट टाइप के लिए नहीं चलता। I'll give you an example. पाकिस्तान में there's a trend of doing magnetic surveys for placers. इस वक्त प्लास्टर्स का सबसे दुनिया में कहाँ काम हो रहा है? कनाडा में काम हो रहा है और यूएस में काम हो रहा है सबसे ज्यादा, आर्टिजनल लेवल पे नहीं, प्रॉपर माइनिंग कंपनीज के थ्रू। एंड इफ यू गो एंड टॉक टू देम कि आपने यहाँ कितने जियोफिजिकल सर्वेस किए, they'll tell you simply कि हमने कभी कोई geophysical survey नहीं किया, because in the 150 years that we've been doing this, we've realized that geophysical surveys are never useful for placers. तो या तो ये लोग सारे बेवकूफ़ हैं, ये गधे हैं सारे जो अमेरिका कनाडा में बैठे हैं, जिनका 150 साल का एक्सपीरियंस है प्लास्टर्स के साथ, जो कहते हैं हम मैग्नेटिक सर्वे नहीं करेंगे और हम साइस्मिक सर्वे भी नहीं करेंगे। और आप उन सब से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं पाकिस्तान में बैठ के, जो आप समझते हैं कि नहीं वो तो नहीं करते, लेकिन हम जब मैग्नेटिक सर्वे करेंगे तो हमें ब्लैक सैंड मिलेगी, और क्योंकि सोना हमेशा ब्लैक सैंड में होता है, इसलिए हमें सोना भी मिल जाएगा। तो अमीर अपनी तरफ से साइंस ना बनाए ना, क्योंकि ये चीज़ नई तो है नहीं। दिस has been going on for 150 years, जो प्लास्टर्स की माइनिंग है in the Western Hemisphere. It's been going on for a while. So again, more is not always better. तो इन्वेस्टर्स के लिए जो हमारा एक दिन का कोर्स है उसमें, that's one of the things I cover, is what should you be actually doing? Okay, how much should you be actually investing in geophysical surveys? And are geophysical surveys the right way to go, depending on your deposit type? अगली चीज़ है, every deposit presents its own unique set of challenges. मतलब ये है कि फर्ज करें आप प्लेसर्स पे काम करें, प्लेसर से जो आप सैंपल करेंगे, सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, उसका सैम्पलिंग का डिस्टेंस, उसकी सैंपल प्रेपरेशन, उसकी सैंपल की एनालिसिस लैब में बिल्कुल अलग होंगी वर्सेस किसी पोर्फरी डिपॉजिट से या किसी स्टार डिपॉजिट से। ये तो सिर्फ लैब की बातें आ गई। फिर बात आ गई कि जब आप इनको अप्रोच करते हैं, अगेन प्लास्टर डिपॉजिट्स, उनमें आपको कंसिडर करना पड़ता है कि जी दरिया का बढ़ाव और चढ़ाव से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, उस एरिया में हमें प्लांट कहाँ लगाना चाहिए।
बजरी जो उधर पड़ी हुई है उसका दरिया के बहाव से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में बैठे हुए चागी मैग्मेटिक बेल्ट में and you're working on porphyries, then there are no rivers. It doesn't, it makes absolutely no difference कि वहाँ seasonality क्या करती है। ठीक है। लेकिन फिर वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो पोर्फिरीज को डेवलप करने के लिए वो नॉर्मली इतनी भारी होती है कि छोट कि छोटी कंपनीज या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उसको हैंडल नहीं कर पाता है। But let's assume आपको एक मिल गई, then what do you do with it? I mean, these are the sort of things we discuss in the course for investors. Then the return on investment takes time. मैंने पहले भी इस पे बात की है। Copper के most projects typically global average is about 30 years. From the moment the deposit is discovered to the moment you actually start making money can take about 30 years. That's a very long time. So, कभी कभी अगर बहुत फुर्ती से आप काम करें और हर चीज़ बहुत फेवरेबल हो, हर चीज़ पहले से सेटअप हुई है, पहले से वहाँ स्मेल्टर सब कुछ है, 15 years. Again, it's a long, long time before you start making any money. And again, this is important to understand क्योंकि इतने साल आपके पैसे फंसे हुए हैं। And mind life matters. अभी मैं एक लिंक्डइन पे एक साहब हैं, वो पोस्ट करते हैं काफी। तो वो चिलास में दरिया के किनारे वो सर्वेस कर रहे थे प्लास्टर गोल्ड के लिए। अब वो जो स्ट्रेच है जहां वो सर्वे कर रहे हैं, बाशा डैम की कंप्लीशन हो जाएगी दिसंबर 2030 तक इंशाल्लाह। विच मीन्स वो पूरा इलाका चिलास के आसपास का वो सब बजरी सब कुछ डैम के नीचे आ जाएगी। दिस मीन्स कि अगर आज आपको इकोनॉमिक अमाउंट्स में वहां गोल्ड मिलता है और इसी साल आप वहां मशीनरी भी लगाते हैं और वो आप प्रोड्यूस करना भी शुरू करते हैं, दिस मीन्स योर माइन लाइफ एंड्स इन 2030, विच मीन्स आपके पास सिर्फ 6 साल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। और जब माइनिंग में जितनी लंबी आपकी माइन लाइफ हो उतना अच्छा है। लोग तो कोशिश करते हैं कि उनकी माइन 30 40 50 साल चले, और अगर उनको ये पता चल जाए कि उनकी माइन लाइफ 10 साल से कम है वो उसको हाथ भी नहीं लगाता है। तो अगेन these are things to consider, and these are things we cover in the investor course. So my next presentation is going to be specifically on the courses, their duration, and the syllabus that we cover. But I hope after this presentation you have a sense of why there is a critical need for mining related training in Pakistan.